Good afternoon students, welcome to today's video lecture of conic sections. In the last class we had done the theory of ellipse. Today we will learn about standard equation of ellipse having major axis along x axis and standard equation of ellipse having major axis along y axis. वो हम करें उसके पहले एक बार क्विक रिवीजन ऑफ एलिप्स करना पड़ेगा. It is, what is an ellipse? It is set of all points. It is set of all points in a plane. In a plane क्या था? Comma. The sum of whose distances. The sum of whose distances. The sum of whose distances from two fixed points. From two fixed points. From two fixed points in the plane. In the plane is a constant. In the plane is a constant. Is a constant. और वो दो फिक्स पॉइंट्स को हम क्या कहते थे? Foci of the ellipse. Two fixed points. Two fixed points are called plural of focus. मतलब foci. Two fixed points are called foci of ellipse. ओके, फिर आपको याद है कि मैंने क्या कंसीडर किया था? आपको पॉसिबल शेप्स ऑफ एलिप्स तो पता ही है. तो एक एलिप्स यू थिंक जस्ट ड्रॉ एन एलिप्टिकल शेप. सपोज हमने क्या रखा था कि दो फिक्स पॉइंट्स f1 और f2 है. f1 और f2 है और 3 पॉइंट्स ऑन द एलिप्स में a pqr. Suppose are 3 points on the ellipse. मतलब what are the two fixed points? f1 f2 are two fixed points in the plane. या f1 f2 आप ऐसे सोचो कि f1 f2 are foci of the ellipse and pqr are the points on the ellipse. ठीक है, थोड़ा ऐसा सा एलिप्स में ड्रॉ करता हूं. तो आपको डिस्टेंस कैसे डेफिनेशन का एप्लीकेशन करना है वो आप बता दो जल्दी से. Okay, so ellipse. Okay, this is our ellipse. Okay, two fixed points are focus denoted by f1 and f2. And suppose 3 points on the ellipse are P, Q, and let me move it. तो आप क्या लिखोगे कि let two fixed points, let two foci of ellipse be f1 f2. मतलब f1 और f2 two fixed points in the plane है, वो foci of the ellipse है. And pqr are three distinct points on the ellipse, and pqr are three distinct points on ellipse. So therefore by definition p का distance from f1 plus p का distance from f2 will be equal to q का distance from f1 plus q का distance from f2 will be equal to distance of r from f1 plus rf2. So by definition of the ellipse, okay, let so by definition of ellipse क्या होगा? Ellipse is set of points, sum of whose distances from two fixed points is always constant. So pf1 plus pf2 will be equal to qf1 plus qf2 will be equal to rf1 plus rf2. इतना आपको पता चल गया. और अगर आप इसी चीज को इन अ कन्वर्स फॉर्म में ले लो कि suppose f1 f2 are two fixed points in the plane. Suppose f1 f2 are two fixed points in the plane. Let f1 f2 be two fixed points in plane. Be two fixed points in plane. And pqr are any 3 points in the plane. pqr are any 3 points in the plane. या ऐसा मैं लिखूंगा for any 3 points for points pqr in the plane for and pqr are any 3 distinct points
इन प्लेन। तो आपको क्या रखना है, फॉर PQR इफ फॉर पॉइंट्स PQR इफ अगर P का डिस्टेंस फ्रॉम F1 प्लस P का डिस्टेंस फ्रॉम F2 इज इक्वल टू Q का डिस्टेंस फ्रॉम F1 प्लस Q का डिस्टेंस फ्रॉम F2 इज इक्वल टू R का डिस्टेंस फ्रॉम F1 प्लस R का डिस्टेंस फ्रॉम F2, देन PQR, देन पॉइंट्स PQR किस पे होंगे, PQR R ऑन एलिप्स, और वो फिक्स पॉइंट F1 F2 क्या हो जाएगी, फोकाई, हैविंग टू फोकाई F1 F2। वही डायग्राम रहेगा, इसलिए मैं अलग अलग नहीं बता रहा हूं, सो दैट पार्ट इज वेरी क्लियर टू यू। अब दूसरा आपको जो तीन डेफिनेशंस, पहला डेफिनेशन हमने क्या किया था, सेंटर ऑफ द एलिप्स, मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स, माइनर एक्सिस ऑफ द एलिप्स, फिर हमने क्या किया था, डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकस, फिर डिस्टेंस लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस, फिर हमने लैटस रेक्टम के बारे में सीखा था और एक्सेंट्रिसिटी के बारे में सीखा था, वो आपको पता है। तो वो तीन डेफिनेशंस क्या थे, व्हाट इज द सेंटर ऑफ द एलिप्स, सेंटर ऑफ एलिप्स क्या था, सेंटर ऑफ एलिप्स इट इज द मिड पॉइंट, व्हाट इज सेंटर ऑफ एलिप्स, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, it is the midpoint of the line segment, it is midpoint of line segment joining, it is midpoint of line segment joining two foci। तो हमारे डायग्राम के लिए मैं F1 और F2 भी रखता हूं, ओके। सेंटर इज डिनोटेड बाय O, it is denoted by O, center of the ellipse is denoted by O, okay। पहले हम मैं क्या करता हूँ, ये सारे डायग्राम, सारे थियरी जो हमने की हुई है, मैं सारी आपको थियरी बताऊं, उसके पहले मैं वो ड्रॉ कर देता हूँ। फिर दूसरा डेफिनेशन क्या था, मेजर एक्सिस, इट इज द लाइन पासिंग थ्रू द फोकस it is the line passing through the center O and the two foci of the ellipse and intersecting the ellipse, obvious major axis। तो पहले what is दूसरा डेफिनेशन क्या था, मेजर एक्सिस, दूसरा डेफिनेशन क्या था, मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स। what is major axis of the ellipse, what is the major axis of the ellipse, it is a line segment through, it is line segment, it is a line segment passing through, it is a line segment passing through the through two foci F1 and F2 and center O of the ellipse, and center O of ellipse, obviously वो F1 F2 से पास होगा तो सेंटर O से भी पास होगा। तीसरा डेफिनेशन क्या था, माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस, it is line segment, it is line segment perpendicular, okay, passing through center of the ellipse, passing through center of ellipse, center O of ellipse and perpendicular to major axis of the ellipse, and perpendicular to major axis of ellipse। उसका मतलब मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस परपेंडिकुलर होंगे और मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, they will intersect each other, they will intersect each other, they will intersect each other at center of ellipse, okay। चौथा डेफिनेशन क्या था, लैटस रेक्टम। मैं सारे डेफिनेशंस पहले लिख देता हूं, फिर एक्सेंट्रिसिटी का भी डेफिनेशन लिख देता हूं, and then I will give the whole critical points in the form of a diagram, तो क्या आप लोग फिर रिकॉल भी कर सको। लैटस रेक्टम का डेफिनेशन हमने क्या याद रखा था, इट इज फोकल कॉर्ड, it is focal chord, it is focal chord, it is a focal chord, it is a focal chord of an ellipse perpendicular
परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स, और एक एलिप्स में हमको दो लैटस सेक्टम मिलेंगे। देयर आर टू लैटस रेक्टम इन एन एलिप्स, इन एन एलिप्स। क्यों? क्योंकि दो फोकस है, एक F1 से पास होता हुआ और एक F2 से पास होता हुआ। So what is a latus sectum? It is the focal chord. It is the focal chord of an ellipse perpendicular to the major axis of the ellipse. फिर दूसरा क्या था? ओके, एक्सेंट्रिसिटी के बारे में ऐसा होगा तो हम बाद में करेंगे। एक्सेंट्रिसिटी के बारे में मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। पहले यहाँ पे सारे थियोरेटिकल पॉइंट्स जो अभी हमने सीखे वो मैं डायग्राम के फॉर्म में ड्रॉ करके बताता हूँ। आपको याद है मैंने कैसे बोला था? जब भी ड्रॉ करना है ड्रॉ दिस वे। ओके, पहले एलिप्स ड्रॉ कर लेते हैं। जब एग्जैक्ट जो दो टाइप्स ऑफ एलिप्स आपको सीखने हैं, फर्स्ट एलिप्स इज एलिप्स हैविंग एक्स एक्सिस एज द मेजर एक्सिस, दूसरा होगा एलिप्स हैविंग वाई एक्सिस एज द मेजर एक्सिस। उसमें मैं आपको जो टेक्निक बताऊंगा वैसे आपको फिर ड्रॉ करना है। एक एलिप्स ड्रॉ कर दो, एक एलिप्स आप ड्रॉ कर दो। ओके, दिस इज आवर एलिप्स। एलिप्स के दो फोकस कौन से हैं? F1 एलिप्स के दो फिक्स पॉइंट्स, मतलब फोकस। एलिप्स में दो फिक्स पॉइंट्स होते हैं, उसको फोकस बोलते हैं। F1 और F2 आर द टू फोकाई। F1 और F2 का जो मिड पॉइंट है, F1 और F2 का जो मिड पॉइंट होता है वो होता है सेंटर ऑफ द एलिप्स डिनोटेड बाय O। F1 और F2 क्या है? F1 और F2 टू फिक्स पॉइंट्स है ऑफ द एलिप्स, मतलब वो फोकस है। O इज द मिड पॉइंट ऑफ F1 F2, तो O हो गया सेंटर ऑफ द एलिप्स। व्हाट इज द मेजर एक्सिस? द लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द टू फोकाई एंड इंटरसेक्टिंग द एलिप्स, उसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। तो ये हो गई हमारी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। और हम लोगों ने क्या याद रखा था कि मेजर एक्सिस इंटरसेक्ट्स the ellipse at A dash. फिर what is the minor axis? Minor axis is the line segment perpendicular passing through the center and perpendicular to the major axis. ये हमारा major axis है. This is our major axis. What is major axis? It is a line or the line segment passing through the two foci and the center of the ellipse and intersecting the ellipse. What is the minor axis? It is a line segment passing through the center and perpendicular, मतलब वो perpendicular होनी चाहिए। minor axis किसको perpendicular होगी? It will be perpendicular to the major axis। और हम assume करेंगे हमारे theory में कि minor axis intersects the ellipse at B dash। ये है हमारा minor axis। This is our minor axis। ओके, इतना आपको पता चल गया। फिर हमने क्या किया था? लैटस रेक्टम। व्हाट इज लैटस रेक्टम? लैटस रेक्टम था फोकल कॉर्ड। लैटस रेक्टम था फोकल कॉर्ड। दो फोकस है F1 और F2। तो फॉर फोकस F1 we will have one latus rectum and for focus F2 we will have second latus rectum. So what is a latus rectum? Latus rectum is the focal chord perpendicular to the major axis of the ellipse. तो ये हो गया हमारा पहला latus rectum। और F1 से एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स, यू विल गेट सेकंड लैटस रेक्टम। इसका आप नाम लिखो L1 L4 और सेकंड लैटस रेक्टम L2 और L3। मैंने लॉजिक क्या दिया था? सोचो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट है। सो L1 L2 L3 L4 ऐसा करके आएगा। सो हियर ये जो अभी मैंने जो भी ड्रॉ किया है उसके बारे में आप रिवीजन, क्विक रिवीजन हम करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए कि F1 F2 आर फोकाई ऑफ एलिप्स। फिर दूसरा क्या था? O is midpoint, O is center of ellipse, that is O क्या होगा? Therefore O is midpoint of F1 F2, इसका याद रखने का। ओके, फिर आपको याद रखना है कि डिस्टेंस बिटवीन, ये ऐसे याद रखोगे, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई हमारे हैं F1 एंड F2। आपको याद रखना है 2C। तो F1 F2
फास्ट, आपको बहुत जल्दी याद आएगा। Therefore F1 F2 is equal to 2C, therefore F1 F2 is 2C। और दूसरा OF1 will be C, OF2 will also be C। इतना आ गया। फिर दूसरा क्या मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस कौन है इधर, मेजर एक्सिस A डैश है। सो मेजर एक्सिस इज हियर A डैश, हियर line A dash, line segment A dash, or you can write line A dash is major axis, is major axis। आपको याद रखना है length of the major axis, length of major axis यहाँ पे हमने रखा है A dash which is equal to A dash length of major axis, length of the major axis, length of the major axis। हमारे डायग्राम में A dash है और जनरलाइजेशन में देखा हूं is equal to A dash is 2A। length of the major axis आपको याद रखना है 2A ही होता है। यहाँ पे F1 F2 है इसलिए मैंने लिखा है। तो therefore A dash क्या हो गया 2A। फिर दूसरा सेमी मेजर एक्सिस, therefore length of semi major एक्सिस को क्या होगा आधा ऑफ 2A which is A, therefore वो होगा 2A is equal to A, 2A dash is A और A dash को क्या बोलेंगे vertices of the ellipse। here A dash are vertices of ellipse, ऐसे याद रखते हैं हम लोग। vertices मतलब endpoints of the major axis, ऐसे याद रखने का। फिर दूसरा क्या था माइनर एक्सिस के बारे में, सेम स्टोरी आप फिनिश करो। here B dash और line B dash और line B dash is minor axis। length of the minor axis जनरल में क्या है तो मैंने बोला था 2C। length of आपको याद रखना है length of the minor axis, length of the minor axis B dash is equal to B dash which is equal to 2B, therefore B dash is 2B हो जाएगा। length of the semi minor axis कितना होगा 2B का आधा, semi minor axis वो कितना होगा 2B का आधा B। तो आप क्या बोल सकते हो OB is equal to therefore OB is equal to B, OB dash is also equal to B। और आप क्या करोगे B और B dash को कैसे याद रखने का end points of the minor axis। here don't remember them as vertices B dash are end points of minor axis B dash। vertices मतलब क्या आपको end points of the major axis A dash और B dash को खाली हम बोलेंगे end points of the minor axis। अगर जेईई या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आता है vertices of the ellipse on the minor axis तो B और B dash को समझ जाएंगे। और अगर vertices लिखा है vertices तो vertices of the ellipse क्या होंगे end points of the major axis। इतना आपको याद रखना है। ओके फुल नोट याद रखना है, nothing mentioned। Okay, right, it is very clear। फिर relation between relation between AB and C वो मैंने आपको दिखाया था कि आपको 3 लेटर्स याद रखने हैं length of distance between, ये आप हमेशा याद रखो distance between two foci of ellipse क्या था कुछ भी F1 F2 फोकस हमेशा नहीं होता है। फिर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स ही होगा क्योंकि एलिप्स में ही मेजर एक्सिस आता है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स 2A, therefore so semi major axis I will not write length, semi major axis A हो गया। फिर आप लिखो length of the minor axis of the ellipse। so point length of minor axis तो भी चलेगा length of minor axis
2b, तीन लेटर्स है a b c, उसके बीच में रिलेशन आपको पता है, तो ये हो जाएगा सेमी माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस या सेमी माइनर एक्सिस, half of b which is b. What is the relation between a b and c? C square is equal to, आपको याद रखना है, c square is equal to a square minus b square. C square is equal to a square minus b square. Here आपको याद रखना है c square is equal to a square minus b square. So therefore c will be positive square root of a square minus b square. हाँ, इधर obviously a square is greater than b square, तो a is greater than b and ये सारे नंबर्स a b c पॉजिटिव होने चाहिए. ये भी हो गया. फिर लैटस रेक्टम आपको याद रखना है. लैटस रेक्टम कितना था? लैटस रेक्टम. ओके, थ्रू f2 व्हाट इज द लैटस रेक्टम? थ्रू ओके, इधर परपेंडिकुलर से बताना चाहिए. सिंपल, ये हो गया. इधर एक्सिस माइनर एक्सिस, परफेक्ट. ओके, नाउ थ्रू the focus f2 l1 l4 is latus rectum और दूसरा आपको याद रखना है through the focus f1 l2 l3 is latus rectum और plural कभी-कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लोग latus recta लिखते हैं. therefore two latus recta are l1 l4 9 सेकंड और दूसरा l2 l3 परपेंडिकुलर होने चाहिए. व्हाट इज द लैटस रेक्टम? इट इज फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस. फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस. दैट इज वेरी क्लियर. वो परपेंडिकुलर है वो सब बताने की जरूरत नहीं है. दैट इज वेरी क्लियर. अब डायग्राम में a कितना है, b कितना है, वो सब बता के गंदा नहीं करना है इस डायग्राम को. दैट इज वेरी क्लियरली शोन. ओके, that we have made this one distance is c, इतना लिखना है c, फिर इतना लिखना है c, फिर इतना आप लिखोगे a. looks very bad. इसलिए वो रहने दो, इतना ही इनफ है. अब एक्सेंट्रिसिटी आपको याद रखना है. एक्सेंट्रिसिटी आपको मैंने डेफिनेशन दिया था, वो आप जल्दी से लिख दो. एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स, एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स, eccentricity of ellipse, it is denoted by E. So it is denoted by E. So eccentricity E of ellipse क्या था? Is the ratio of the distances. Is the ratio of the distances from the center to the focus. Is the ratio of the distances from the center of ellipse, to the focus, to one of the foci and to one of the vertices, of use the word major axis, to one of the vertices of the major axis of the ellipse. Eccentricity is denoted by E. It is denoted by E. और अब एक्सेंट्रिसिटी, तो अगर आपको बताना है using this definition, ratio of the distances from center O से F2 का डिस्टेंस OF2 अपॉन F2 फोकस के लिए वर्टेक्स A है और F1 फोकस के लिए वर्टेक्स A डैश है. तो एक्सेंट्रिसिटी क्या होगा उस टर्म्स में जो मैंने आपको पिछले क्लास में सिखाया था, वो आप जल्दी से देखो. सो फॉर ओके नाउ eccentricity जो होता है, it is denoted by E and it lies between 0 and 1. So here for an ellipse ये आपको याद रखना है, उसका प्रूफ भी मैं आपको दे चुका हूँ. eccentricity lies between 0 and 1. अब
By definition, what is eccentricity? By definition, what is eccentricity? Eccentricity is the ratio of the distance from center O is ratio of the distances from center O to the focus O to F2 upon distance from center O to the vertex A. So OA, मतलब अगर फोकस हमारा F2 है तो द वर्टेक्स क्या होना चाहिए? A. सिंपल. दूसरा, what is eccentricity in terms of focus F1 and in terms of focus F1 and vertex A dash. So by definition eccentricity क्या होगा? Distance from center O to the focus F1 upon distance from the center O to the vertex corresponding vertex A dash. मतलब फोकस अगर F1 है तो तब corresponding vertex of the major axis क्या है? A dash. ठीक है, vertex A था, यहाँ पे vertex A dash था. ओके, अब आपको सारा डिस्टेंस तो पता ही है, C and all that stuff. तो eccentricity के बारे में करते हैं कि eccentricity E कितना था? OF2 upon OA. Therefore E कितना हो जाएगा? OF2 कितना था? OF2 कितना था डिस्टेंस C और OA कितना था? A. So E is C by A. As E is कितना है? OF2 upon OA. Eccentricity कितना आएगा? C by A. इतना आपको याद रखना है. Eccentricity is C by A. फिर आपको दूसरा क्या याद रखना था? सी, कुछ वर्ड्स क्या सोचेंगे कि ये तो किया हुआ है, ये हमको आता है. सी, अगर ये टर्मिनोलॉजी आपको याद नहीं रहेगी तो फिर देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिमेंबरिंग द अदर थिंग्स. सो OF1 अपॉन OA डैश, तो eccentricity कितना हो जाएगा? C by A. तो आपको याद रखना है अब से eccentricity is C by A, जहां पे डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकाई 2C होता है और लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस 2A होता है. ओके, अब ये आपको पता चल गया. नाउ C स्क्वायर क्या होता है? C स्क्वायर क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट, C स्क्वायर इज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. तो C क्या था? स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. देयरफॉर eccentricity C by A वो क्या हो जाएगा? C by A था, तो दैट वे यू कैन डायरेक्टली राइट eccentricity क्या हो जाएगा? तब हम अगर एमसीक्यू में कोई पूछता है स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन A. ओके, C स्क्वायर क्या था? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो C हो गया पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. सेकंड पॉइंट, नाउ C स्क्वायर क्या है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर एंड eccentricity कितना है? C by A. तो E स्क्वायर कर दो, E स्क्वायर आप कर दो, तो E स्क्वायर कितना आएगा? C स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर और फिर आप सब्स्टिट्यूट कर दो. E स्क्वायर कितना आएगा? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन. और आपको याद रखना है कि eccentricity always lies between ये दोनों, जो रिजल्ट नंबर 1 और रिजल्ट नंबर 2 जो मैंने किया, तो eccentricity के टर्म्स में किया है. तो आपको याद रखना चाहिए कि here eccentricity lies between 0 and 1. Eccentricity lies between 0 and 1. A is greater than B और बाकी के सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं and A is greater than B. Now here 0 is less than B is less than 1 and A is greater than B. Also ये जो A, B, C है वो तीनों पॉजिटिव हैं. A, B, C पॉजिटिव. तो ये हो गया हमारा रिवीजन ऑफ what we had done till now. Now we will learn about the two types of ellipse. One is having major axis along x-axis, जो ऐसा होगा, इसी टाइप का ellipse होगा, और दूसरा होगा ellipse having major axis along y-axis. मतलब अंडा along x-axis will be the major axis along x-axis, और दूसरा if you draw an egg like this along y-axis, that will be major axis along y-axis. उसके बारे में हम करते हैं. और so now let us start. Just 1 minute. I will have some water and then I will continue.
उसको याद रखना पड़ेगा। ओके, सो गिव द हेडिंग ellipse, standard ellipse having major axis along y axis and minor axis along y axis। मैंने क्या बोला? ellipse having major axis along x axis, उसके बारे में हम पूरा theoretical points में आपको लिख के दूंगा। So ellipse having major axis, प्लीज अच्छे तरीके से हमारा पहला जो पैरा एलिप्स है वो है ellipse having major axis along x axis and minor axis along y axis। याद रखो, minor axis along y axis। मैं राइट में 6 लिखूंगा और लेफ्ट में मैं आपको धीरे धीरे से पॉइंट बता दूंगा। मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है एंड माइनर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है। तो पहले आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। आप समझना मैं कैसे कर रहा हूं, ठीक है? ओके, तो ये हो गया एक्स एक्सिस, एक्स डैश, और ये हो गया वाई एक्सिस, वाई डैश। अब मेजर एक्सिस हैविंग ellipse having major axis along x axis means you draw an egg along x axis means this kind. So this will be our ellipse. This will be our ellipse. This is our ellipse means egg along x axis means अंडा along x axis. तो उसका आप याद रखो सेंटर, उसका आप सेंटर याद रखो कि पहला आप याद रखो स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको याद रखना है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज 1। और आप a स्क्वायर इज ग्रेटर देन b स्क्वायर, तो आपको क्या रखना है कि डिनोमिनेटर ऑफ here denominator standard equation x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1। now here क्या होगा, denominator of x square is that is जो है a square greater than denominator of y square is greater than denominator of y square जो है b square। तो आप क्या लिखोगे, a square is greater than b square, so therefore a is greater than b। तो आपको याद रखना है a square is greater than b square। so ellipse having major axis along x axis and minor axis along y axis, उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन x square वैसे ड्रॉ करेंगे आप x square upon a square plus y square upon b square is 1। so denominator of x square is greater than denominator of y square, so a square is greater than b square, so therefore what you will write, therefore a is greater than b, a square is greater than b square। तो आपको याद रखना है a is greater than b। और दूसरा एंड ये पॉजिटिव नंबर्स होंगे, a पॉजिटिव b पॉजिटिव। फिर सेंटर मेजर एक्सिस क्या है, माइनर एक्सिस क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। उसके पहले आप क्या लिखोगे, उसके पहले मेजर एक्सिस के पहले आप लिख दो फोकाई। फोकाई के बारे में लिखना है तो फोकाई क्या होते हैं, f1 f2 और फिर सेंटर आता है f1 और f2। तो सेकेंड पॉइंट, टू फोकाई आर फोकाई किस पे होते हैं, फोकाई किस पे होते हैं। ओके, व्हाट आई विल डू इज दैट फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। फिर मेजर एक्सिस कौन सा है, x एक्सिस। माइनर एक्सिस कौन सा है, y एक्सिस। ओके, तो सेंटर ऑफ द एलिप्स क्या था, सेंटर ऑफ एलिप्स आपको याद रखना है ओरिजिन O 0 0। तो सेंटर ऑफ द एलिप्स ओरिजिन है O 0 0। फिर फोकस किस पे होते हैं, फोकस मेजर एक्सिस पे होते हैं। इसके फोकाई टू फोकाई ऑफ एलिप्स आपको याद रखने हैं r प्लस माइनस c0 और आपको याद रखना है कि f1 होगा f2 होगा c0 और f1 होगा माइनस c0। पहला फोकस c0, दूसरा फोकस
माइनस C0, तो जो टू फिक्स पॉइंट्स हैं ये F2 ये हो गया C0 और यहाँ पे आएगा F1, दिस विल बी आवर F1 which is minus C0. So to focus center origin, to focus F1 minus C0, F2 C0, ये आपको याद रखना है। फिर मेजर एक्सिस क्या था? X एक्सिस, मेजर एक्सिस इज X एक्सिस, तो वो एलिप्स कहाँ पे मिलेगा? मेजर एक्सिस क्या होता है? मेजर एक्सिस इज अलोंग X एक्सिस, मेजर एक्सिस इज अलोंग X एक्सिस और फोकस किस पे होता है? X एक्सिस पे, मतलब मेजर एक्सिस पे, इसलिए आ गया। अब फोर्थ पॉइंट, मेजर एक्सिस क्या है? मेजर एक्सिस इज अलोंग X axis, major axis is along X axis, so therefore major axis is along X axis है, तो ये एलिप्स मेजर एक्सिस को मिलेगा A और A डैश पे। So here major axis is along X axis, so major axis is, आप याद रख सकते हो, major axis is A डैश और लाइन A डैश, ठीक है। फिर लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस क्या होगा? लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस का 2a, सो a डैश कितना होगा? 2a। लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, फिफ्थ पॉइंट, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना था? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मैंने सिखाया था 2a, देयरफॉर a डैश 2a। फिर लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस कितना था? हाफ ऑफ 2a which is a, तो OA, what is the distance to A? So 2a is A, so A dash is also A। अब थोड़ी बुद्धि लगाओ कि O is origin 0 0 और OA कितना डिस्टेंस है? छोटा A is on positive x axis, तो इसका इक्वेशन क्या है? वैसे कोऑर्डिनेट्स क्या है? A0 और A dash के कोऑर्डिनेट्स क्या है? माइनस A0, तो उतना तो आपको पता ही है, that is obvious, this point is A dash और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं माइनस A0, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं माइनस A0, तो ये A dash जो है वो हो जाएंगे vertices of the ellipse on the major axis, vertices of the ellipse on the major axis. So 7th point, vertices of ellipse, vertices of ellipse on the major on the major axis, वो क्या होंगे? वो आपको याद रखने हैं प्लस माइनस, वो आपको याद रखने हैं प्लस माइनस A0, और यहाँ पे मेजर एक्सिस क्या है? A डैश, so for major axis A dash, for major axis A dash, for major axis A dash, ये हो जाएगा A0 and A dash हो जाएगा minus A0. Now you know what I am going to write. Length of, what is the minor axis? Minor axis is along y axis, ठीक है? Minor axis is along y axis. What is the major axis? F1 F2 और जो फोका है उसका मिड पॉइंट सेंटर ऑफ द एलिप्स हो गया 0 0, F1 F2, F2 is C0, F1 is minus C0, ये मेजर एक्सिस है। What is the minor axis? Minor axis is the line passing through the center of the ellipse and perpendicular to the major axis. तो major axis is along y axis here. Minor axis is इसके लिए क्या था? DB dash और लाइन DB dash। फिर लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस क्या होता है? लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस क्या होता है? लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस का 2, लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस आपको पता है 2b है, तो आपको याद रखो db dash is 2b। फिर आधा लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस क्या था? लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस कितना था? 2b का आधा b, सो 10 पॉइंट। लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, या यू ओनली राइट सेमी माइनर एक्सिस वो b था, तो वो d इधर बदलता b एंड b डैश, b और b डैश को बताना भूल गया। सो देयरफॉर OB कितना होगा?
छोटा b, OB dash कितना होगा, वो भी छोटा b. Okay, now this minor axis, y axis meets the ellipse at b dash. So b dash is the minor axis और definitely OB b है, OB dash b है. b is on positive y axis, b dash is on negative y axis, तो इससे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 b और इससे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 minus b. It's obvious because 0 b कितना है, OB कितना है, छोटा b, OB dash कितना है, छोटा b और O origin है. That's the logic. So अब इसको हम क्या बोलेंगे, end points. End points of the minor axis. End points of the minor axis कैसे हो गए, 0, प्लस और माइनस b और हमारा माइनर एक्सिस है b dash. So for minor axis b dash, for minor axis b dash, b के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे 0 b और एंड b dash के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 0 minus b. ओके, अब इसके बाद क्या था, मेजर एक्सिस हो गया, माइनर एक्सिस हो गया, लेंथ ऑफ द लैटिस वेक्टर. ओके, अब देखो सारी थियरी हो गई. वो इसके पहले जो मैंने सिखाया वही चीज यहां पर रिपीट हो रही है, तो बहुत इजीली आपको लर्न हो जाएगा. लैटिस वेक्टर, व्हाट इज लैटिस वेक्टर? इट इज द फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर, इट इज द फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स. मेजर एक्सिस कौन है, एक्स एक्सिस. तो F2 फोकस से एक फोकल कॉर्ड ड्रॉ करो परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस L1 L4. तो ये हो गया लैटिस रेक्टम, पहला लैटिस रेक्टम. दूसरा फोकस F1, उससे दूसरा लैटिस रेक्टम आएगा. Draw a line segment, draw a focal chord perpendicular to the major axis x axis. So L2 L3 L2 L3. और हाँ, हमारा ये जो एलिप्स है उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था, x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1, जहाँ पे a is greater than b. ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन x square upon a square plus y square upon b square is 1. Coefficient denominator of x square is greater than denominator of y square, so a square is greater than b square, so a is greater than b. अब लैटिस रेक्टम के बारे में हम करते हैं कि two lattice rectum are कौन सा है, L1 L4 और दूसरा L2 L3. आपको याद रखना है लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम 2b square upon a, 2b square upon a. वो चेंज नहीं होगा, ये दो तीन चीजें चेंज नहीं होगी. लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम, चौथा पॉइंट होता है जो चेंज नहीं होगा. टू लैटिस रेक्टम आर L1 L4 13 पॉइंट. लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम कितना है, मैंने बोला 2b square by a. Therefore पहला लैटिस रेक्टम है L1 L4, so L1 L4 कितना आएगा डिस्टेंस 2b square by a. और दूसरा लैटिस रेक्टम है L2 L3, तो उसका लेंथ भी आएगा 2b square by a. ओके, दैट पार्ट इज क्लियर. अब उसके एंड पॉइंट्स ऑफ द लैटिस रेक्टम कैसे लिखने हैं वो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं. एंड पॉइंट्स ऑफ द लैटिस रेक्टम या कोऑर्डिनेट्स ऑफ लैटिस रेक्टम कैसे मिलेंगे वो मैं आपको समझाता हूं और आपको वो याद रखना पड़ेगा. जस्ट 1 मिनट, वो स्टैंडर्ड इक्वेशन बाद में मैं लिखता हूं. ओके, नाउ आपको याद रखना है कि एंड पॉइंट्स ऑफ द लैटिस रेक्टम, दो लैटिस रेक्टम है L1 L4 और L2 L3, तो चार आएंगे. तो उसके लिए मैं आपको जरूर दे रहा हूं, कॉमन सेंस लगाओ. ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये वर्टिकल लाइन होनी चाहिए. तो L1 आप याद रखो, एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम आप सीधा याद रखो प्लस माइनस c प्लस माइनस b square by a. You just remember this way. End points of the lattice rectum. If I give you the derivation and all that stuff, you will get confused कि वो आएगा कि नहीं आएगा. End points of the lattice rectum आपको याद रखना है प्लस और माइनस c प्लस माइनस b square by a. तो आपको याद रखना है L1 is in the first quadrant, तो उसको याद रखने का c b square by a प्लस L2 L4 फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो आप याद रखो प्लस और माइनस, सो c माइनस b स्क्वायर बाय L3 थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो माइनस c माइनस b स्क्वायर बाय a. और L2 सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो L2 आप कैसे याद रखोगे माइनस c b स्क्वायर बाय a. ठीक है, तो वैसे एट पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम हो गए. देयरफॉर आप क्या याद रखोगे L1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो क्या आएगा प्लस c b
स्क्वायर बाय ए। सेकेंड क्वाड्रेंट में है L2, तो कितना आएगा L1 L2 L3 L4 आप लिखो L1 L2 L3 L4 ठीक। L1 लिखा, फिर आप L2 लिखो। L2 के कोऑर्डिनेट्स क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस सी कॉमा, ओके L2 क्या आएगा माइनस सी कॉमा बी स्क्वायर बाय ए। थर्ड क्वाड्रेंट में L3 वो आएगा माइनस सी कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाय ए। और फोर्थ क्वाड्रेंट में L4 सी कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाय ए। फिनिश्ड। तो डाटा सेक्टर कौन सा है L1 L4 और L2 L3 आपने देखा, मैंने L1 के नीचे L4 लिखा है और L2 के नीचे L3 लिखा है। फिनिश्ड। लेंथ ऑफ डाटा सेक्टर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर बाय a, तो L1 L4 होगा 2b स्क्वायर बाय L2 L3 भी होगा 2b स्क्वायर बाय a। और दूसरा आपको फिर क्या करना है एक्सेंट्रिसिटी, डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकाई, वो मैं आपको बता चुका हूं। डिस्टेंस बिटवीन, ओके लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस हो चुका है, लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस हो चुका है, सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस हो चुका है। डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकाई और बता चुका हूं। डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई आपको याद रखना है 2c, वो मैंने आई बिलीव स्टार्टिंग में लिखा था f1 f2 is equal to 2c। distance between the two foci I believe ये लिखा था distance between the two foci is 2c, so therefore f1 f2 is 2c। और दूसरा का OF1 is c, OF2 is c, O is center of the ellipse, O is center। फिर याद रखने का कि this ellipse is symmetric about x axis as well as y axis, मतलब it is symmetric about major axis as well as minor axis and the center, मतलब okay सेंटर भी हो गया। हाँ दिस पार्ट इज डन। नंबरिंग थोड़ा इधर उधर हो सकता है। यस एक्सेंट्रिसिटी क्या बताओ, व्हाट इज द एक्सेंट्रिसिटी? एक्सेंट्रिसिटी is the distance from the center O to the focus F2, suppose OF2 upon distance of the center O to the vertex A, so OA, so E क्या आएगा? E आएगा C by A। Similarly इधर आप लिख दो कि E क्या आएगा? Distance from the center O to the focus F1, OF1 upon distance from the center O to the corresponding vertex O A dash, so E कितना आएगा? C by A। तो आपको याद रखना है कि एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द ellipse क्या होता है c by a। E is equal to c by a, ठीक है। therefore E is equal to c by a, you can also write c is equal to ae, okay। फिर what is the relation between c a and b? what is the relation between c a and b? तो क्या था here c square is equal to एक्सेंट्रिसिटी हो गया। फिर here c square is equal to a square minus b square, मतलब a square is greater than b square। तो उसमें से आप c क्या निकाल सकते हो? c you can remember as square root of a square minus b square। और हाँ आपको याद रखना है कि डिनोमिनेटर ऑफ x square स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसका आप लिख देंगे इधर लिख दीजिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 where a is greater than b। yes, तो आपको याद रखना है here a is greater than b and they are positive numbers a b c are positive। yes, इतना ही हमको याद रखना है। हाँ एक चीज रह गई, एक्सेंट्रिसिटी लाइज बिटवीन 0 and 1। छोटी छोटी चीजें हैं आपको याद रखनी है, 0 लेस देन e लेस देन 1। और हाँ वो e के जो अलग फॉर्मूला किए थे उस पे अभी वापस जाने की जरूरत नहीं है, दैट इज ऑब्वियस। हाँ एक पॉइंट जो आपको याद रखना है वो क्या रखना है, इस डायग्राम में आप ड्रॉ करना कि टू डायरेक्ट्रिसेस जैसे फिक्स लाइन होती है फोकस, तो वैसे डायरेक्ट्रिक्स भी होती है, फिक्स लाइन डायरेक्ट्रिक्स भी होता है एलिप्स में। तो F2 फोकस के लिए एक डायरेक्ट्रिक्स होती है और F1 फोकस के लिए एक करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स होती है। टेक्स्ट बुक में वो नहीं दिया है, आपको नोट करके याद रखना है कि फॉर, प्लीज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट,
for x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 where a is greater than b और कैसे a square is greater than b square मतलब a is greater than b मतलब major axis is along x axis and minor axis is along y axis. Two directrices are x is equal to plus or minus a by b. Two directrices are x is equal to plus or minus a by b. Just 1 minute. I will have some more and then I will continue. तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा. This is our ellipse having major axis. This is our ellipse having major axis along. This is our ellipse having major axis along x-axis. Very clear? Very very clear. और अगर आपको इसी में डायरेक्ट्रिक्स भी ड्रॉ करनी है तो फिर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में कहीं और लिखता हूँ. Just 1 minute. Let's see how I will show you the directrix. A is A0 और A dash. यहाँ पे A dash is I will write minus A0. तो आपको याद रखना है कि the directrix of this ellipse कहाँ पे होगा मैं आपको बताता हूँ. This is focus ये है F2 तो उसकी corresponding directrix is this one. इधर आप ड्रॉ कर दो. This is the corresponding directrix x is equal to A by E. This is the corresponding directrix x is equal to A by E और इसके लिए the focus F1 के लिए corresponding directrix is x is equal to minus A by E. Nothing remains. Standard equation तो आपको पता ही है वो लिखने की जरूरत नहीं है. So two directrices. So x is equal to plus or minus A by E are two directrices for ellipse. Standard equation एक बार लिख लो. Major axis is along x axis, minor axis is along y axis. तो आपको पता है x square upon x square plus y square upon y square is equal to 1 जहाँ पे a square is greater than b square मतलब a is greater than b फिनिश. तो ये इस तरीके से आपको लर्न हो जाएगा. ओके और हाँ इधर मैं एक्सटेंड कर देता हूँ. फिनिश्ड. दिस इज आवर x. यहाँ पे क्या पॉइंट्स हैं वो आपको पता है माइनस a by 0 और यहाँ पे a by 0 उस पे जाना नहीं है. मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्ट्रिक्स है x is equal to a by e और दूसरा डायरेक्ट्रिक्स है x is equal to minus a by. और ये L3 के कोऑर्डिनेट्स हैं लिखा है L2 L1 और परफेक्टली डन. इतना ही आपको याद रखना है. Major axis along x axis. Now the second ellipse is major axis along y axis. वो आपको ऐसे ही रिपीट करना है. ये थियरी अगर आपको लर्न हो गई, if you have learned this theory, then easily this can be finished. Easily this can be finished. Not at all tough, not at all easy, पर हाँ अच्छे तरीके से आपको करना पड़ेगा. Otherwise ये अगर आपने लर्न नहीं किया तो ये आपको नहीं आएगा. मैंने स्ट्रेट लाइंस में आपको टाइम क्यों दिया? मैंने आपको स्ट्रेट लाइंस में टाइम इसलिए दिया क्योंकि उसमें काफी थियरी है और वो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है. अगर आपको थियरी नहीं आएगी तो आप नहीं कर सकते. सेम थिंग गोज विद दिस आल्सो. सेम लॉजिक गोज विद दिस. तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा. अगर आप लोग ये डायग्राम याद नहीं रख पाओगे तो फिर आप लोगों को ये नहीं आएंगे इसके सम्स. सम्स बहुत इजी है. If you are knowing the theory and if you have understood all the definitions, the main words which are given, then it is the easiest. And same thing goes with yes okay. और हाँ आप ऐसा लिख सकते हैं. Now second is the ellipse having, the second is ellipse having major axis, ellipse having major axis along, ellipse having major axis along y axis and minor axis along x axis.
तो डेफिनेटली दिस एलिप्स, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? इसका मेजर एक्सिस कौन है? इसका मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है और इसका माइनर एक्सिस कौन है? एक्स एक्सिस। तो डेफिनेटली यू ड्रॉ एन एलिप्स, मतलब एक अलोंग एक्स एक्सिस ऐसे बनाएगा। So this will be the shape of our ellipse having major axis along y axis, major axis along y axis। यहाँ पे खाली लिख लो x, x dash और y axis यहाँ पे लिख लो y, y dash। तो इसका पहला पॉइंट आप क्या याद रखोगे? इसका पहला पॉइंट आप क्या याद रखोगे? How you will remember? Ellipse having major axis along y axis and minor axis along x axis। पहला पॉइंट क्या आपको याद रखना है? स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या याद रखोगे? स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको याद रखना है, पहले में क्या था? x square upon a square plus y square upon b square is 1। just reverse। so x square upon b square plus y square upon a square is 1। x square upon b square plus x perfect, x square upon b square आपको याद रखना है x square upon b square, x square upon b square plus y square upon a square is 1। और आपको पता है हमेशा a is greater than b, so a is greater than b, so क्या है? डिनोमिनेटर ऑफ in, आप इसे याद रखो, in x square upon b square plus y square upon a square is equal to 1। डिनोमिनेटर of y square, that is a square is greater than denominator of x square, so when b square is greater than denominator of y square। आपको खाली ये डायग्राम अच्छे तरीके से कैसे मैं फॉर्म करता हूं, अगर वो आ गया is greater than denominator of x square, that is b square। उसका मतलब क्या? here a square is greater than b square, उसका मतलब a is greater than b। याद हो गया सारे इक्वेशन? so here a square is greater than b square, so therefore a is greater than b and ये सारे नंबर्स पॉजिटिव होने चाहिए। a and b are positive, a और b are positive, a and b are positive, a is greater than b। जहाँ पे आप here a is greater than b, here a is positive and b is positive। अब तीन लेटर्स होते हैं तो a और b तो इक्वेशन में आ गया। फिर आपको पता है सेंटर ऑफ द एलिप्स क्या है? सेकंड सेंटर ऑफ द एलिप्स। पहले तो फोकस पर आपको पता है सेंटर ऑफ द एलिप्स क्या होता है? सेंटर ऑफ एलिप्स ओरिजिन ही होगा o 0 0। फिर आपको याद रखना है टू फोकाई, और ओके पहले मैं टू फोकाई बता देता हूं कि टू फोकाई ऑफ एलिप्स। फोकाई किसपे होता है? माइनर एक्सिस पे, मेजर एक्सिस पे। तो फोकाई आर ऑन द मेजर एक्सिस, दिस इज आवर मेजर एक्सिस y एक्सिस, माइनर एक्सिस इज x एक्सिस। तो टू फोकाई ऑफ एलिप्स विल बी, फोकस किस पे होते हैं? मेजर एक्सिस पे। मेजर एक्सिस इज y एक्सिस, तो वो आएंगे 0, +, -c। तो देयरफॉर f2 में रखूंगा 0c और f1 हो जाएगा 0 -c। तो फोकस किस पे होते हैं? फोकस किस पे होते हैं? मेजर एक्सिस पे। सो दिस इज f2 0c and this is our f1 0 -c। or what you can remember is that distance between, I think that is better way of remembering, distance between the two foci, distance between two foci क्या होता है? 2c। तो टू फोकाई अब क्या हो जाएंगे? टू फोकाई क्या हो जाएंगे? टू फोकाई क्या हो जाएंगे? so therefore टू फोकाई ऑफ एलिप्स वो क्या हो जाएंगे? you understood? 0, +, -c because foci are on major axis y axis। तो f1 -c 0 और f2 f4 और f2 लिखते हैं। f2 is our c0 and f1 is, देखिए मैंने गलत लिखा, 0, c आएगा क्योंकि मैं फ्लो में लिख रहा हूं तो मिस्टेक होगी, और f1 0, -c। ओके ठीक हो गया। नाउ सेंटर ऑफ द एलिप्स, सेंटर क्या होता है? मिड पॉइंट, सेंटर ऑफ एलिप्स
It is the midpoint of the line segment joining the two foci. F1 और F2 का midpoint क्या होगा? Center of the ellipse. Yes, origin. Okay. Now, what is the major axis? Major axis is the line passing to the focus. Major axis is the line passing to the focus, and it meets the y-axis at a dash. तो यहाँ पे major axis is along y-axis. तो उसका मतलब here, which is our major axis here, a dash और line a dash is major axis. ठीक है? ओके, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस क्या होता है? लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस क्या होता है? लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस होता है 2a. लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस होता है 2a. So therefore, length of the major axis, okay, length of the major axis क्या होता है? Length of major axis कितना होता है? 2a. इधर मेजर एक्सिस का लेंथ कितना है? a डैश. तो a डैश हो गया 2a. इसका आधा क्या होता है? सेमी मेजर एक्सिस और लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस वो हो जाएगा 2a और 2a डैश. दैट इज वेरी क्लियर. और फिर आपको a के कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे. सो दैट इज फिनिश. 7 पॉइंट लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस वो सेम ही रहेगा. लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस हाफ ऑफ 2a which is a. वो कितना होगा? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर o. OA is equal to a and OA dash is equal to also a. अब vertices of the ellipse. What are vertices of the ellipse? What are vertices of the ellipse? Vertices of the ellipse are the endpoints of the major axis. OA कितना है? छोटा है. OA dash कितना है? छोटा है. A and A dash are on y axis. तो A के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0 में और A dash के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 0 minus a. So what are the right? Vertices of major axis of ellipse वो क्या होंगे? एंड पॉइंट्स a and a dash. तो वो कैसे हम लिख सकते हैं? 0, प्लस और माइनस a. So therefore for major axis a dash, a के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 a और a dash के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 माइनस a. तो इस कोऑर्डिनेट्स हो गया. फिर दूसरा माइनर एक्सिस के बारे में हम लोग सेम थ्योरी के लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस क्या था? अरे माइनर एक्सिस इज अलोंग. माइनर एक्सिस क्या होता है? माइनर एक्सिस हमारा एक्स एक्सिस है. इट इज अ लाइन पासिंग टू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस. एक्स एक्सिस इज द माइनर एक्सिस. तो एक्स एक्सिस एलिप्स को मिलता है b और b डैश पे. तो माइनर एक्सिस इज अलोंग x axis इस ellipse में. तो डायग्राम से आपको पता है कि what is the minor axis? b dash is the minor axis. So therefore here b dash line segment b dash or line b dash is minor axis, is the minor axis. Okay, length of the minor axis क्या होता है? Length of the minor axis क्या होता है? लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस होता है. लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या था? लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होता है 2b. तो therefore b डैश कितना आएगा? 2b. b डैश आएगा 2b. फिर लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस कितना आएगा? लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस minor axis half of 2a which is a. So definitely वो होगा distance from O to B which is to here. So OB वो आएगा B और OB dash वो भी आएगा B. तो B dash क्या हो जाएंगे? You can say endpoints of the minor axis. और वो किस पे है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है. They are on x axis. So endpoints of minor axis क्या होंगे? प्लस माइनस b, 0. So for minor axis
फॉर माइनर एक्सिस हमारा है बी बी डैश। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? बी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे बी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे b0 और बी डैश के आएंगे -b0। ओके, इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे b0 और बी डैश के कोऑर्डिनेट्स आएंगे b0 और बी डैश के कोऑर्डिनेट्स आएंगे -b0। दैट इज वेरी क्लियरली यू मस्ट रिमेंबर। ओके, और हाँ आपको क्या याद रखना है कि अगर वर्टाइसेस ऑफ एलिप्स बोलते हैं, वर्टाइसेस ऑफ एलिप्स, तो ऑलवेज इन द वर्टाइसेस ऑफ एलिप्स मींस एंड पॉइंट्स ऑफ द मेजर एक्सिस। तो इस केस में a और a डैश हो जाएंगे। आप a डैश को याद रख सकते हो दो फॉर्म में, एंड पॉइंट्स a डैश आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द मेजर एक्सिस a डैश, दूसरा a डैश आर द वर्टाइसेस ऑफ द एलिप्स ऑफ द मेजर एक्सिस। b डैश आप याद रखो आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द माइनर एक्सिस। और अगर कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो लोग पूछते हैं एसएससी के एग्जाम में फाइंड द वर्टाइसेस ऑफ द एलिप्स ऑन द माइनर एक्सिस, तो इधर इसमें होगा b डैश। सो दैट वी हैव फिनिश्ड वर्टाइसेस हो गया ना। लैटस रेक्टम, ओके, इसके बाद लैटस रेक्टम आएगा। व्हाट इज लैटस रेक्टम? लैटस रेक्टम इज द फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस इज y एक्सिस, तो f2 से जो फोकस में जो लैटस रेक्टम मिलेगा वो होगा L1 L2 और F1 फोकस से एक फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो आपको दूसरा लैटस रेक्टम मिलेगा L3 L4 L3 L4। सो टू लैटस रेक्टम फॉर, ओके लिख लो, x square upon b square plus y square upon a square is equal to 1। जहां पे आप ऐसे याद रखो a is greater than b। कौन कौन से हैं? L1 L2 और L3 L4। ओके, लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम क्या मैंने बोला? लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम आपको याद रखना है, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम ऑफ एलिप्स आपको सेम ही है रिजल्ट 2b square by a। तो इधर लैटस रेक्टम कौन सा है? L1 L2। सो L1 L2 is 2b square by a and the distance between L3 L4 is also 2b square by a। अब वर्टाइसेस के बारे में जरा सोचो क्या आएगा। बहुत फ्लिप करना है आपको, पिछला जो था उसका खाली आपको फ्लिप करते रहना है, आंसर आ जाएगा। Therefore L1 L2 is 2b square by a L3 L4 is 2b square by a। That is very clearly done। अब for the ellipse vertices क्या end points of the lattice rectum क्या है? End points of the lattice rectum end points of lattice rectum, end points of the lattice rectum, end points of the lattice rectum for ellipse x square upon b square plus y square upon a square is equal to 1। जहां पे a square is greater than b square या a is greater than b are calculated। तो कौन से होंगे? क्या है? प्लस और माइनस b square by a प्लस और माइनस c। तो आप याद रख सकते हो कि L1 क्या है? L1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो L1 आप याद रखो b square by a c। L2 सेकंड क्वाड्रेंट में है, दूसरा में इसको मैंने ये L3 है, दिस इज आवर b dash which is -b0, दिस इज आवर L2। तो उसे कोऑर्डिनेट्स आएंगे -b square by a c। थर्ड क्वाड्रेंट में L3 क्या आएगा? -b square by a -c और L4 फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो प्लस माइनस b square by a -c। ऐसे याद रखना है L1 L2 L3 L4। L1 क्या आएगा? दोनों प्लस b square by a c। L2 उसके बाजू में लिख दो कितना आएगा? माइनस प्लस b square by a c। और थर्ड क्वाड्रेंट में L3 है और फोर्थ क्वाड्रेंट में L4 है, तो L3 और L4 के कोऑर्डिनेट्स आप लिख दो। So you use these notations only, it will be very helpful। Please चेंज मत करना। L3 दोनों माइनस b square by a माइनस c और L4 is प्लस माइनस तो b square by a माइनस c। फिनिश्ड। ये हो गया लैटस रेक्टम के बारे में। फिर एक्सेंट्रिसिटी
एक्सेंट्रिसिटी और बाकी सब तो सेम रहेगा, खाली डायरेक्ट्रिसिस आपको मुझे बतानी है, वो मैं आपको बता देता हूं। डायरेक्ट्रिसिस मुझे आपको बतानी है। तो एंड पॉइंट्स ऑफ द डेटा सेक्शन भी हो गया। अब आपको पता है कि the distance between the two focus कितना था? Here distance between the two focus हम already लिख चुके हैं f1 f2। distance between the two focus f1 f2 is 2c, OF1 is c और OF2 is also c। फिर distance, what is the length of the major axis, length of the minor axis वो हम कर चुके हैं। length of the major axis, length of the minor axis वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, क्या रहेगा? डायरेक्ट्रिक्स बचा है, anything else? ओके, f1 f2 is 2c। ओके, डायरेक्ट्रिक्स से पहले बता देता हूँ, इसके डायरेक्ट्रिक्स बता देता हूँ, फिर वो जनरलाइजेशन में जाते हैं जिसमें एक्सेंट्रिसिटी आएगा और रिलेशन बिटवीन a b और e में आएगा। ओके, 17.2 डायरेक्ट्रिसेस, 2 डायरेक्ट्रिसेस for x square upon b square plus y square upon a square is equal to 1, जहाँ पे where 2 directrices for x square upon b square plus y square upon a square is equal to 1 are y is equal to plus or minus a by e, y is equal to plus or minus a by e। और हाँ, आपको याद रखना है a square is greater than b square, उसका मतलब a is greater than b। तो अब वापस लिखो, that is y is equal to plus or minus a by e are directrices for ellipse, directrices for ellipse क्या था? x square upon b square plus y square upon a square is equal to 1। Now obviously a square is greater than b square, so you can remember as a is greater than b। Write both the things, ठीक है? a square is greater than b square, उसका मतलब a is greater than b। और वो डायरेक्ट्रिसेस आपको पता नहीं पड़ेगी। L2 is छोटा सा लिखता हूं यहाँ पे, L2 के कोऑर्डिनेट्स थे माइनस b स्क्वायर बाय a कॉमा c। ये है इसका करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स। मतलब अगर फोकस है f2 0 c तो उसका करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स है y is equal to a by e, y is equal to a by e। और अगर फोकस है f1 तो उसका करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स इधर आएगा, that will be y is equal to minus a by e। यहाँ पे आप लिख दो y is equal to minus a by e। और हाँ, इस एलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन मैं इधर लिखता हूँ x square upon b square plus y square upon a square is 1, a is greater than b। फिर इतना ही है, फिर वही है रिलेशन बिटवीन a b and e, eccentricity, that all the things which you know, all the things which you know। तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं आ सकता है कि c square is equal to a square minus b square। ओके, that things remain the same। मतलब NCERT पुरानी अगर आप दूसरी बुक्स रेफर करोगे तो वो लोग अलग तरीके से करते हैं। if some students they refer the old Julian board textbook, that theory will be totally reverse, you cannot do it because that is not acceptable। आपको वही theory करनी है जो NCERT में आती है। okay, and this will be very very important for your 12th standard, 2 to 3 chapters। one chapter which is differential equation and application of integrals भी बहुत important है। okay, that part is clear now, that part is clear। डायरेक्ट्रिक्स मैं बता चुका हूँ। ओके, उसके बाद आपको याद रखना है कि here distance between the two focus f1 f2 कितना था? 2c। तो OF1 is c and OF2 is also c। what is the length of the major axis? length of the major axis a dash is 2a, so 2a is a and OA dash is also a। what is the length of the minor axis? what is the length of the minor axis? BB dash 2b। तो उसका मतलब OB कितना था B और OB dash कितना था B। what is the relation between A, B and E? या ऐसे, so here आपको याद रखना है therefore c square is equal to a square minus b square, therefore c is square root of a square minus b square। and as आप ऐसा याद रख सकते हो कि as c square is equal to a square minus b square, you don't remember a square is equal to b square plus c square, that will create some confusion। तो c square is a square minus b square। और आपको याद रखना है
ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, उसका मतलब ए इज ग्रेटर देन बी, और यहाँ पे सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं, ए बी सी आर पॉजिटिव। हो गया पहला रिलेशन बिटवीन ए बी सी। डिस्टेंस बिटवीन द फोकस, डिस्टेंस लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द फोकस, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस हो गया। ओके, नाउ एक्सेंट्रिसिटी, एक्सेंट्रिसिटी क्या आएगा? एक्सेंट्रिसिटी क्या आएगा? एक्सेंट्रिसिटी भी चेंज नहीं होता है, एक्सेंट्रिसिटी भी चेंज नहीं होता है। तो आपको कैसे याद रखना है कि बाय डेफिनेशन व्हाट इज एक्सेंट्रिसिटी? एक्सेंट्रिसिटी क्या था कि एज एक्सेंट्रिसिटी होता है फोकस अगर F2 है तो उसका करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कितना होगा? A। तो OF2 अपॉन OA, सो E कितना हो जाएगा? C अपॉन A। और दूसरा एज एक्सेंट्रिसिटी E इज अगर फोकस F1 है तो उसका करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स A डैश हो जाएगा, सो E अगर मैं ढूंढता हूं OF1 अपॉन OA डैश तो E कितना आएगा? C अपॉन A। सो दोनों केसेस में एक्सेंट्रिसिटी क्या होता है? E इज C by A, E is C by A, therefore E is C by A, और यहाँ से आपको C मिल सकता है AE, और आप याद रखो कि eccentricity of an ellipse always lies between 0 and 1, always lies between 0 and 1। आप सोच सकते हो this much distance is C and this much whole distance is A, so C is less than A। मैं आपको बता दूँगा, so ये हो गया C is equal to AE, C is equal to AE। That part is over। Now let me see if I can solve the question or not. No. Okay. Now, what I will do is that so that part is very clear। तो आपको बस इतना याद रखना है, दो चीजें आप याद रखो कि मेजर एक्सिस along x axis and minor axis along y। okay, there are two ellipses having सारे पॉइंट्स हो गए, तो खाली स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको क्या रखना है कि x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 is standard equation of ellipse having square upon a square plus y square upon b square is equal to 1। यहाँ पे a square is greater than b square मतलब a is greater than b is standard equation of ellipse, having major axis along x axis, and minor axis along y axis। okay, मतलब डिनोमिनेटर ऑफ x square is greater than डिनोमिनेटर ऑफ y square। और दूसरा जो मैंने अभी आपको सिखाया पहला वाला, और इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था? x square upon b square plus y square upon a square is equal to 1। a square is always greater than b square, उसका मतलब a is greater than b is standard equation of the ellipse having major axis along y axis and minor axis along x axis। The standard equation of ellipse having major axis along y axis, and minor axis along x axis। टर्मिनोलॉजी इज very important। और आप देखो कि दोनों एलिप्स, पहला एलिप्स और दूसरा एलिप्स, दोनों केसेस में अगर c स्क्वायर क्या होता है? दो चीजें हैं। फर्स्ट केस नोट व्हाट इज द रिलेशन कोई भी एलिप्स के लिए c स्क्वायर, हियर we have given c square is equal to a square minus b square for both the ellipse for x
स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहां पे a square is greater than b square मतलब a is greater than b for this one ellipse और दोनों ellipse x square upon b square plus y square upon a square is 1. तो अगर c special case है everyone, if c is 0, if c is 0 मतलब हमको कंसीडर नहीं करना है, और अगर c 0 हो जाता है तो a square इक्वल टू b square हो जाएगा. Let c is equal to 0, let c is equal to 0, therefore c square is equal to a square minus b square हो जाएगा. तो 0 is equal to a square minus b square हो जाएगा. तो a square क्या हो जाएगा? a square हो जाएगा b square. So a square will be equal to b square. तो what we will get? So we will get a is equal to b. So we will get a is equal to b. This is given on page number 248, case number 1 and case number 2. Okay, we will get a is equal to b. तो ये क्या हो जाएगा? तो a is equal to b है, तो we will get so x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 becomes x square plus y square is equal to a square, and अगर हमारा दूसरा इक्वेशन था x square upon b square plus y square upon a square is equal to 1 becomes, आप a square की जगह पर b square लिख दो तो that also becomes x square plus y square is equal to a square, और x square plus y square equal to a square क्या है? This is a circle. This is a circle. ये एक सर्कल का इक्वेशन है. So for c is equal to 0, अगर c 0 है तो हमको एक सर्कल मिलेगा. So for c is equal to 0, we will get a circle. For c is equal to 0, we will get a circle. And what will happen actually? C is 0, these two focus will coincide with the center. So for C is equal to 0, the two foci merge or coincide with the center, merge together. You can say merge together. That is coincide. With center O of the ellipse, center O of ellipse, and ellipse reduces to circle. So actually circle is a special case of ellipse for a is equal to b. Yes or no? So circle is a special case of ellipse for a is equal to b. Yes or no? That is understood. फिर अगर c square is equal to is, so that part is clear. और second case में c square is equal to a square minus b square. Suppose I take c is equal to a for now here हमारे पास रिलेशन क्या था? c square is equal to a square minus b square. Let c is equal to a and b is 0. तो फिर क्या हो जाएगा? तो c square is equal to a square आएगा, b 0 हो जाएगा. So what we end up getting? b can be 0. So we end up getting a line segment f1 f2. Then it reduces. Then ellipse दोनों ellipse कोई भी x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1, जहाँ पे a square is greater than b square, और x square upon b square कोई भी ellipse होगा उसमें क्या हो जाएगा? b is 0 आपका तो c is equal to a हो जाएगा. तो अगर b 0 है तो ये b और o के साथ कौन सा हो जाएगा? एंगल इंटरसेक्टिंग हो जाएगा लाइन सेगमेंट f1 f2. Then ellipse दोनों ellipse reduces to the line segment f1 f2 joining the two focus f1 and f2. Then ये दोनों ellipse will coincide. And ये point जो है they are not very important, but I just gave it because मुझे एक्स्ट्रा सब नहीं करना था. Then the ellipse reduces to line segment f1 f2 joining the two focus. Yes. Then the reduces to line segment f1 f2 joining two foci f1 and f2. Finished. Okay, so I will end today's class over here only and submit. Okay.
So this finishes the theory for ellipse, and the next class we can start off with the exercise. इतना enough है. अगर आप लोग इतना learn कर लोगे, more than enough, you can easily manage the exercise. It is that much easy. Okay, it is just based on the calculation. So I will end today's class over here only. That's it for today. Take care, work hard, revise the theory of ellipse, and be regular. Thank you.